Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, spectators and students. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the last topic of chapter number 8, that is chemical reactions of alkynes. Now first of all we will discuss the reactivity of alkyne. My dear students, as you know that in alkynes carbon atoms are held together by triple bond. In triple bond there is one sigma bond and two pi bonds. There are two pi bonds and one sigma bond in the case of ethyne. And as you know that alkyne has sp hybridization, and it means that the S character is 50% and the electron density is very high, and it is closed between the two carbon atoms. It has two pi bonds and electron density is very high and is also closed. Therefore pi bond will be less diffused pi bond. When electrophile will attack on this carbon-carbon triple bond, then their rate of reaction will be slow. अब इसमें जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू न्यूक्लियाई के दरमियान होती है और इसमें एस करैक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड लेस डिफ्यूज्ड होता है. This is all about the reactivity of alkynes. Now first of all we will discuss the addition reactions of alkynes. In the addition reaction, number one reaction is hydrogenation. Addition of hydrogen to a molecule is called hydrogenation, but this reaction will take place in the presence of nickel as a catalyst and at 200 to 300 degrees Celsius temperature. In alkyne you must note that alkyne में डबल स्टेप रिएक्शन होगा. फर्स्ट स्टेप में ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज होगा. एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड Ca2. और ये था इथाइन. इथाइन किस में चेंज हो गया? इथीन में. And now my dear students, this reaction will take place in the presence of nickel as a catalyst at 200 to 300 degrees Celsius temperature. Now in the second step, second reaction, again hydrogen molecule will add, one hydrogen will attach on this carbon atom and other molecule will attach on this carbon atom, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. एंड इन दिस वे वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी सेटिस्फाइड, दैट इज 4. एंड इन दिस वे इथेन इज प्रोड्यूस्ड. ये कन्वर्जन आ जाती है, कन्वर्ट इथेन फ्रॉम इथाइन. तो आप ये दोनों स्टेप लिखेंगे. एंड वन थिंग प्लीज नोट दैट सेकंड रिएक्शन विल आल्सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड at temperature 200 to 300 degrees Celsius. The short question is convert ethane from ethyne. So then you will have to write down both the steps. या इस तरह आ सकता है, define hydrogenation, give the hydrogenation of alkynes. तो आप ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे तो ये कंप्लीट होगा. Now my dear students, the second reaction is halogenation. Halogenation, it's also very simple and easy. Addition of halogen to alkyne is called halogenation. So halogenation में, as you know that halogen group में fluorine, chlorine, bromine, iodine. My dear students, reaction of fluorine is very vigorous. Chlorine and bromine reactions are moderate, while iodine reaction will be very slow. ये बात याद रखिएगा, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या MCAT के अंदर ये पूछा जा सकता है. अब इसके दो रिएक्शंस हैं, डबल स्टेप रिएक्शन है. इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन क्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी एडेड, यहाँ क्लोरीन की जगह
आप ब्रोमीन भी ऐड कर सकती हैं, फ्लोरीन भी ऐड कर सकती हैं, आयोडीन भी ऐड कर सकती हैं। व्हेन वी ऐड क्लोरीन, one chlorine will attach on this carbon atom, other chlorine will attach on this carbon atom. In this way, carbon carbon triple bond will break down into carbon carbon double bond, and in this way which product is produced? In this way my dear students, 1 2 ये क्लोरीन एटम यहाँ अटैच हो गया इसके और एक क्लोरीन एटम यहाँ अटैच हो गया। इन दिस वे ट्रिपल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन इनटू डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या है? ये पोजीशन, सपोज दैट ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। 1 2 कितने क्लोरीन अटैच हुए? 2 1 2 डाई क्लोरो इथेन, और इसके अंदर चूंकि डबल बॉन्ड चेंज हो गया है, अब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। देन अगेन ऐड क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोबारा इसके अंदर क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? एक क्लोरीन जो है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। एक क्लोरीन ऊपर यहां अटैच हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहां अटैच हो जाएगा, एंड इन दिस वे ये 4 क्लोरीन एटम विल बी अटैच्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड इन दिस वे इसका नाम क्या होगा? अब ये अगर 1 कहें, इसको 2 कहें, 1 1 इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच हैं 1 1, और ये इस कार्बन के साथ भी 2 अटैच हैं 2 2, 1 1 2 2। हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड? 4, 1 2 3 एंड 4, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरोइथेन। अब इसका नाम क्या होगा? 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरोइथेन विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम ब्रोमीन ऐड करते तो इसका नाम क्या होता? 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमोइथेन। माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जन आ जाती है, एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, हाउ यू विल कन्वर्ट 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरोइथेन फ्रॉम इथाइन। तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे, ये दोनों डबल स्टेप रिएक्शन लिखेंगे, then you will be awarded full marks. And now my dear students, the third reaction is hydrohalogenation. इसका दूसरा नाम addition of halogen acid भी कहते हैं इसको। अब addition of halogen acid में what is hydrohalogenation? hydro mean hydrogen, halogen mean halogen, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का अल्काइन के अंदर ऐड हो जाना हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज टू अल्काइन इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हेलोजन एसिड्स में हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके बाद HBr, देन HCl, देन HF। अगर हम देखें कि कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये आयोडीन जो है सबसे वीक जो है, ये इसकी रिएक्टिविटी में देखें, इसकी ये जो इसका रिएक्शन जो है ये स्लो होता है, जबकि फ्लोरीन का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। लेकिन जब हेलोजन एसिड में की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। नाउ द एग्जांपल इज, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इथाइन। व्हेन यू ऐड HCl, HCl की जगह आप HBr भी ऐड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऐड करने लगे हैं HCl, यू नो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, अदर क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड इन दिस वे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड इन दिस वे दिस प्रोडक्ट दैट इज नोन एज विनाइल क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए यहां अगर ब्रोमीन लगा होता तो इसका नाम क्या होता? विनाइल ब्रोमाइड। नाउ दिस डबल बॉन्ड, अब जहां भी डबल बॉन्ड आ जाए उसको हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देन अगेन वी विल ऐड HCl टू दिस विनाइल क्लोराइड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, दिस ये जो अल्काइन है ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल अल्काइन वो अल्काइन होती है, मैंने आपको अल्कीन के अंदर भी बताया था, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उनके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल हो तो उस अल्कीन या उस अल्काइन को क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिकल। लेकिन अगर अल्काइन या अल्कीन के अंदर
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएं तो उस अल्काइन को, उस हाइड्रोकार्बन को क्या नाम देंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये जो विनाइल क्लोराइड बना है इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब क्यों अनसिमेट्रिकल है? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इस कार्बन के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है। नाउ मैंने आपको अल्कीन के रिएक्शंस में बताया था मार्कोनिकोव्स रूल। व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? अब जब ये कंडीशन आ जाए तो HCl में क्लोरीन किस कार्बन के साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये कंडीशन आ जाए देन अप्लाई मार्कोनिकोव्स रूल, अदरवाइज आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। अगर आप ये वाला क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव रूल ये कहता है ये एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, इट कंटेन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। The partial negative end, that is chlorine molecule, chlorine atom will attach to that carbon atom which contain least number of hydrogen atom। ये जो क्लोरीन है उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास का हाइड्रोजन कम होंगे। देखें इसके पास 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन है ये किस कार्बन के साथ अटैच होगा? यहां पर। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहां अटैच होगा? इस कार्बन के पास। तो दिस इज वी हैव डन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल एंड इन दिस वे ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा एंड इन दिस वे अ न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? 1,1 डाइक्लोरो। अब देखें, अब फर्ज करें ये इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, पोजीशन 1 पर 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं तो इसलिए इसको 1,1 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो और क्या बन गया? 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम को कहते हैं इथेन। 1,1 डाइक्लोरो इथेन विल बी प्रोड्यूस्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्वेश्चन आ जाता है हाउ यू विल कन्वर्ट विनाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइन। तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिख देंगे। अगर वो कहता है कन्वर्ट 1,1 डाइक्लोरो इथेन फ्रॉम अल्काइन तो आप ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे और साथ मार्कोनिकोव रूल का भी बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4, फोर्थ रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। इसकी जगह हम एडिशन ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्या चाहिए? आपको कैटालिस्ट की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस सल्फेट। मर्क्यूरस सल्फेट में वी विल ऐड 10% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर कितना रखेंगे? 75 डिग्री सेल्सियस पर हम ये रीजेंट तैयार करेंगे जो यहां पर जो है एज अ रीजेंट यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यूज करेंगे टू स्पीड अप दिस रिएक्शन। व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज इथाइन। व्हेन वी ऐड वाटर व्हाट विल हैपन? दिस हाइड्रोजन, इसका ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये यहां अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां अटैच कर दें तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन है। यहाँ क्लोरीन अटैच हुआ था, विनाइल क्लोराइड कहा, यहाँ OH अटैच हो गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होगा तो इसको क्या कहेंगे? विनाइल अल्कोहल। और एक बात याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल। ये फॉरन रीअरेंजमेंट के बाद इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और इन दिस वे ये जो यहां से जो है इसके ऊपर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके पास एंड इन दिस वे एसीटल्डिहाइड विल बी प्रोड्यूस्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, on the rearrangement of this molecule, that is vinyl alcohol, will be changed into acetaldehyde। तो ये एक क्वेश्चन आता है, convert ethyne into acetaldehyde। तो आप ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, then you will be awarded full marks, that is
2/2. And the second one is convert propine into acetone. अब ये क्या था, इथीन था, हमने इथीन को कन्वर्ट किया किसमें, एसिटल्डिहाइड में, लेकिन अब प्रोपाइन को कन्वर्ट करना है किसमें, एसीटोन में। कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट प्लीज, दिस इज प्रोपाइन, और ये प्रोपाइन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है और इसके ऊपर मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, ये हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट एंड 10% H2SO4 एट 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां पर OH किस कार्बन के साथ अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल OH विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कौन सी कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन एटम लीस्ट है, ये वाली कार्बन, इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसके साथ ये अटैच हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन के साथ अटैच होगा। कौन सा अटैच होगा, ग्रुप पार्शियल नेगेटिव एंड OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड इन दिस वे CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड इन दिस वे 2 प्रोपानॉल विल बी प्रोड्यूस्ड। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू 2 प्रोपानॉल, तो आप ये सिंगल स्टेप लिखेंगे ऑन इट्स रीअरेंजमेंट। ये जो 2 प्रोपानॉल है विनाइल अल्कोहल की तरह अनस्टेबल होता है, ये रीअरेंजमेंट पर जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये एसीटोन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्यों ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन और अटैच होगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो हमने क्या किया, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन किया बोर्ड का, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव कन्वर्टेड प्रोपाइन इनटू एसीटोन। और कौन सा रूल अप्लाई किया, मार्कोनिकोव्स रूल। हमने दोनों के अंदर मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई किया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे अल्कीन और अल्काइन के दोनों लेक्चर सुने और मार्कोनिकोव रूल का कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आपको मार्कोनिकोव रूल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आगे आपको रिएक्शंस नहीं आएंगे। अगर आप मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन गलत होगा। इसको कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ें, रट्टा नहीं लगाएं। Thank you very much my dear students, spectators and dear viewers for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.